بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 42 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ، مصنف امجد جاوید۔ یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 42، صفحہ نمبر 395 سے۔ کہاں غلطی ہو گئی؟ پولیس اور خفیہ کے لوگ اس علاقے کو گھیر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مدن لال نے کہکا لگایا، جو اگرچہ جاندار نہیں تھا، مریل سا تھا، لیکن اس میں فتح مندی کا احساس چھلک رہا تھا۔ اسے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھا، پھر دلجیت کی طرف دیکھ کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو؟ علاقے پر بادشاہت ایویں ہی ہو جاتی ہے؟ ابھی چند منٹ میں وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ چاہے تم لوگ مجھے مار دو، لیکن تم اور تمہارے ساتھی کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کرا کر رہ گیا، پھر انتہائی نفرت سے بولا، بے غیرت سکھوں اور مسلو، تم لوگوں سے اپنا بھارت شدھ کر کے چھوڑیں گے۔ اس میں چاہے جتنا وقت لگ جائے، بھگوان کی کرپا سے لاہور کا نیٹ ورک چلے گا جو پاکستان کی جڑیں ختم کرے گا۔ اب مارو مجھے، ختم کر دو مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اضطراری انداز میں اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو گھمایا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ عجیب سی بھاری ڈائل والی گھڑی تھی۔ میں لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا، وہ مدن لال کی نشاندہی کرنے والا آلہ بھی تھا۔ دلجیت، اس کی بکواس مت سنو اور سب کو لے کے فوراً نکلو یہاں سے، صرف 2 منٹ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہنجر سے اس کی کلائی کاٹ دی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ دلجیت جا چکی تھی۔ میں نے مدن لال سے کہا، سنو، جب تک ہم جیسے سر پھرے لوگ ہیں، تم جتنی بھی کوشش کر لو، پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں دیکھوں گا تیرا نیٹ ورک۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہنجر اس کی کھوپڑی میں گاڑ دی۔ اس نے ایک سسکی لی اور مر گیا۔ تقریباً 2-3 منٹ کے اندر وہاں پر موجود سب لوگ مختلف سمتوں میں پھیل کر نکل گئے۔ ہم نے ایک 4 وہیل جیپ میں سوار وہاں سے نکلے۔ ہمارے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جسے دلجیت اغوا کر کے لائی تھی۔ اس وقت وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اس لڑکی پر نہیں سوچا، بلکہ میری ساری توجہ اس گھڑی کو ٹھکانے لگانے پر تھی۔ جیسے ہی ہم مین روڈ پر آئے، ہمارے سامنے سے ایک ٹرک گزرا۔ میں نے وہ گھڑی اس پر پھینک دی اور پرسکون ہو گیا۔ یہ گھڑی؟ دلجیت نے پوچھا۔ مدن لال کی نشاندہی کرنے والا آلہ۔ اب ہمارے سارے ناکے ٹوٹ جائیں گے۔ ہمیں صرف آدھا گھنٹہ چاہیے۔ لفظ ابھی میرے منہ سے ہی نکلے تھے کہ کافی دور کھڑی کاریں نظر آئیں۔ انہیں چیک کیا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، دلجیت رکو۔ اسے فوراً گاڑی روک لی۔ کیا بات ہے؟ وہ ناکا؟ ہاں، میں نے کہا، اس لڑکی کا بہانہ کر کے نکل جائیں گے نا؟ بیمار ہے، ہسپتال؟ وہ بولی، نہیں، رسک نہیں لینا، نکلو۔ میں نے اترتے ہی کہا۔ میں نے فوراً کار چھوڑ دی اور پھر تیزی سے سڑک کنارے سے ہٹ کر اندھیرے میں چلے گئے۔ تبھی دلجیت کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو نکلو، میں تو جالندھر کے بارے میں نہیں جانتا نا، میں نے کہا۔ اسے چند لمحے سوچا اور ہم بائیں جانب آبادی کی جانب چل پڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم گلیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے کہیں نکل جائیں گے، جہاں سے کہیں محفوظ مقام کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد ہم نے گلیاں پار کر لی تو ہمارے سامنے ریلوے ٹریک تھا۔ میں نے آسمان پر دیکھا اور سمت کا اندازہ کیا۔ صبح ہونے میں تھوڑا وقت ہی رہ گیا تھا۔ ہم ریلوے ٹریک پر شمال کی جانب چلتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی دلجیت نے جھنجھلائے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کسے کال کروں۔ سڑک پر چلنا خطرناک، اور صبح تک وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسے جلدی سے اسکرین پر نمبر دیکھے، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولی، اجنبی نمبر، کون ہو سکتا ہے؟
یہ کہتے اس نے فون ریسیو کیا، پھر اگلے ہی لمحے حیرت سے بولی، جمال تیرا کوئی جاننے والا ہے؟ اس نے فوراً فون کان سے لگا دیا اور ہیلو کہا تو دوسری طرف سے جسپال کی آواز آئی، اوئے کہاں ہے تو؟ او فرشتہ لگے ہو یار، تو یہ نمبر کیسے؟ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس نہیں کر، جلدی سے بتا تو ہے کدھر؟ میں جالندھر میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، اسے تیزی سے پوچھا۔ یہ دلجیت سے پوچھ لے۔ یہ کہہ کر میں نے فون دلجیت کو دیا تو وہ اسے لوکیشن سمجھانے لگی۔ ہم فرینڈز کالونی سے موتی نگر تک آ گئے ہیں۔ ریلوے ٹریک سے ہٹ کر ہم دوبارہ روڈ پر آئے تو ایک محسوس جگہ پر وہ ہمیں کھڑا ہوا ملا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ان سے چند فٹ کے فاصلے پر کار کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کار میں جا بیٹھے۔ جیسے ہی ہم اس کی کار میں بیٹھے وہ چل دیا۔ وہ خاموش تھا، اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک چھوڑ کر ایک گلی میں گھس گیا جس کی رہنمائی ہرپریت کر رہی تھی۔ نیا پیراگراف۔ موتی نگر میں حالسہ تحریک کے ایک عہدیدار کا وہ گھر ایک تنگ سی گلی میں واقع تھا جس میں مشکل کار آتی تھی۔ انہوں نے کار باہر ہی پارک کی اور پیدل اس کے گھر تک آئے تھے۔ اس وقت وہ چاروں ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر ہرپریت ہی ہمارے کام آئی، دلجیت نے خوش ہوتے ہوئے جسپال سے کہا تو وہ بولا، میں پچھلے کئی گھنٹوں سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور دلجیت کا نمبر میں نے وہیں سے لیا ہے جہاں سے مجھے لینا چاہیے تھا۔ جسپال نے کہا تو میں سمجھ گیا۔ مگر تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ جسمندر تیرے بارے میں جانتا ہے تو دوسرے بھی تیرے بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے، یہ خطرناک بات تھی۔ اور میں نے جسمندر وہی نا جو اب کینیڈا میں ہے؟ دلجیت نے پوچھا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ جسپال نے پوچھا۔ ہم کچھ عرصہ یہاں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، میں بھی وہیں جانے والی تھی یہ آپریشن پورا کر کے، مگر اس نے آخری لفظ بڑی ادا سے کہے تھے۔ مگر مطلب؟ میں نے پوچھا۔ آپریشن ادھورا رہ گیا۔ میں نے مدن لال کو چارہ بنانا تھا وکی سنگھ کے لیے۔ دوسرا آپریشن وہ لڑکی تھی۔ اب شاید وکی سنگھ زیر زمین چلا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ مدن لال نے لاہور کے بارے میں سچ بولا ہوگا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کے لیے سبھی پر اداسی چھا گئی۔ تب وہ بولی، 1 سال ہو گیا میں مدن لال پر کام کر رہی تھی۔ اس کے 2 سیکیورٹی کے لوگ بہت مشکل سے خریدے۔ خیر چھوڑو، اس نے کہا اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تبھی ہرپریت بولی، اتنی سی بات پر اداس ہو گئی ہو؟ وکی سنگھ جہاں بھی ہوا نکال لیں گے اسے باہر۔ فی الحال کچھ کھانا پینا ہے تو ٹھیک، ورنہ چلے ہوگی پنڈ۔ میرے پاس صرف 2 دن ہے ہرپریت، پھر میں نے کینیڈا چلے جانا ہے۔ جس طرح جسپال یہاں آیا ہے نا، میں بھی اسی طرح یہاں آئی ہوں۔ اس سے پہلے میرا بھائی لکھوندر سنگھ آیا تھا، وہ یہاں کی مٹی میں مٹی ہو گیا۔ اس کے قاتلوں کو اور اپنے باپو کے قاتلوں کو میں نے مار دیا۔ اب واپس نہ گئی تو وہاں کی عدالت میری پراپرٹی میرے نام ختم کر کے چیریٹی کو دے دے گی۔ او، تم لکھ کر دے آئی ہوتی، کوئی بات نہیں، 2 دن بہت ہیں، جسپال نے کہا۔ کل مجھے امرتسر جانا ہے، دلجیت کور نے کہا تو ہرپریت سوچتے ہوئے بولی، تم 2-4 گھنٹے سو لو، آرام کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت زیادہ اعتماد تھا۔ میں نے ایک نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈالی۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو جانے کے لیے اشارہ کیا تو میں نے اعلانیہ انداز میں کہا، اوکے ہرپریت، میں تو سو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے صوفے پر سیدھا ہو گیا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جس وقت میری آنکھ کھلی تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں فریش ہو گیا تھا۔ دلجیت صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی تھوڑی اپنے ہی گھٹنوں پر رکھے
किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर होले से कहा, दिलजीत, क्या बात है, इतनी अफसरदा क्यों हो? उसे चौंक कर मेरी जानब देखा, फिर गमज़दा मुस्कुराहट के साथ मेरे चेहरे पर देखते हुए बोली, जमाल, हम न जाने किस रास्ते के राही हैं। हमारी मंजिल क्या है? हमारा मरकज कहाँ है? क्यों है इस दुनिया में इतनी नफरत? एक अच्छा भला बंदा होता है, उसे इंतकाम की आग न जाने कैसे कैसे देश फिरा देती है। जिंदगी का शिकार होने वाला भी दरिंदा ही बन जाता है। जंगल है ये दुनिया, जिसमें लहू से आबियारी होती है। हम किसी को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। लगता है तुम पर कुछ ज्यादा ही अफसरदगी तारी हो गई है। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो वो खिसकती हुई मेरे करीब आकर मेरे पहलू से लगकर बैठ गई। फिर अपना सर मेरे कांधे पर रखते हुए बोली, मैं एक लड़की हूं जमाल, चाहे जितनी खून रेजी कर लूं, मार धाड़ में जितनी ताक हो जाऊं, लेकिन यहाँ इस सीने में एक दिल भी है। मेरी अंदर के औरत के मुतालबात तो वही औरत वाले ही रहेंगे ना। क्यों नहीं ये दुनिया पुरसुकून हो जाती, हम भी सुकून से रहें। दिलजीत कंवर जी, दुनिया उस वक्त पुरसुकून होती है जब बंदा अंदर से पुरसुकून हो जाए। यहीं पर माफ कर देने का फलसफा समझ में आता है। खैर, तुम कनाडा जा रही हो तो सुकून से जाओ, अपनी एक पुरसुकून जिंदगी और नई दुनिया आबाद करो। तूने अपने परिवार का बदला ले लिया है, यही बहुत है, मैंने तहम्मुल से कहा। अब मैं इस दुनिया में तन्हा हूं जमाल, कोई नहीं है मेरा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं किसी बंदे से शादी कर लूं और बस यही जीवन है। उसे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। फिर मेरे चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, मैंने बारहा मौत को अपने करीब देखा है, अब डर नहीं लगता मौत से। जिंदगी और मौत के दरमियान जो हला है, मैं उसमें जी रही हूं, न जाने क्या होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर दिल करे तो उस पर अमल कर लेना। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए उसे मुतवज्जा करते हुए कहा, तो वो मेरी जानब गहरी नजरों से देखते हुए बोली, बोलो, हिदमत हलक करो, बहुत सुकून मिलेगा। अपनी लड़ाई का रुख बदल दो, यही इंसानियत है। मैंने कहा तो उसने चौंक कर मेरी जानब देखा, फिर होले होले सर हिलाते हुए बोली, हाँ, ऐसा ही करूंगी। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, जमाल, वादा करो तो मेरे पास कनाडा जरूर आओगे। जिंदगी रही और मैं वहां जा सका तो जरूर। मैंने वादा कर लिया। तभी हरप्रीत कमरे में दाखिल हुई। वाह, बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है भाई, कहीं तुम दोनों में वो तो नहीं? उसे शोही से कहा तो दिलजीत गहरी सांस लेकर बोली, काश ऐसा होता हरप्रीत, मैंने तो कई बार इसे ऑफर की है, मगर ये कहकर वो दिल खोल कर हंसती तो हरप्रीत भी हंसते हुए बोली, अगर मजीद रोमांस का इरादा ना हो तो चलें। कहाँ? मैंने बेहतियार पूछा। यार, जरा मार्केट तक चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, कुछ खाए पिएंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। उसने एक ही सांस में प्रोग्राम बताया। चलो, मैंने उठते हुए कहा तो दिलजीत मुझसे पहले ही उठ गई। उस घर से निकलकर जब हम तंग सी गली में आए तो मालूम हुआ कि बारिश हो रही है। अगरचे इतनी तेज नहीं थी, लेकिन काफी जल थल हो चुका था। गली के नुक्कड़ पर जसपाल खड़ा था, उसके साथ एक खूबरू नौजवान था जिसने सुर्ख रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। हम उनके करीब पहुंचे तो करीब खड़ी 4 व्हील जीप की तरफ इशारा करते हुए जसपाल ने पूछा, इधर बैठो। हम उसमें बैठ गए तो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई लड़की ने जीप बढ़ा दी। तभी जसपाल ने तारीफ कराया, ये स्वीटी है और ये प्रयाल है। वो हवेली वाले? मैंने पूछा तो जसपाल ने तेजी से कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें तो याद है यारा। अभी हम उनके घर जा रहे हैं, यही नजदीक ही है विजय कॉलोनी। ओके,
मैंने कहा और खामोश हो गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम उनके घर के करीब पहुंच गए। नहा धोकर फ्रेश होते हमें नए कपड़े दिए गए। दिलजीत ने शलवार कमीज पहनी थी। सभी ड्राइंग रूम में खाने की मेज पर आ गए। तभी खाना खाते हुए प्रयाल सिंह ने कहा, बाई जी, ये जिस विकी सिंह की बात आप कर रहे हैं ना, 2 साल पहले कुछ भी नहीं था। यही छोटी मोटी चोरी, गुंडागर्दी और मनुष्यात फरोख्त करता था। अब मुझे समझ में आई है कि एकदम से इतना मजबूत कैसे हो गया। खैर, मैंने लड़कों को उसकी तलाश पर लगा दिया है। वो बड़ी खामोशी से इसे तलाश कर लेंगे। अपने लड़कों से ये कह दो कि इसे तलाश करके इसका ठिकाना मालूम कर लें। इसे निगाहों से ओझल ना होने दें। जसपाल ने कहा, आप फिक्र न करें भाई जी, ऐसा ही होगा। उसने कहा तो वो मुतमईन हो गया। वो उस पहर और शाम के दरमियान का वक्त था। मैं, जसपाल, हरप्रीत और दिलजीत ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे। मदन लाल के बारे में मुकामी टीवी तफसीलात बता चुका था। उसकी आखिरी रस्मात अदा हो गई थी। उसके कत्ल के जिम्मेदारों के बारे में ये इतला थी कि उन्हें 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में कातिलों को पकड़ने के लिए ऐसी सरगर्मी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मामले में सियासी दबाव लाजमी था। शहर में हाई अलर्ट था, लेकिन इन सभी इदारों की एक हाली ऐसी है जो मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाबी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। वो हामी ये है कि जब तक कहीं से कोई निशानदही न मिले, वो मुजरिम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा जाता है ना कि जब पकड़ा जाए वही मुजरिम, वरना बाकी सब मासूम होते हैं। अक्सरियत से जराइम इन्हीं सियासी कदावर शख्सियात की छतर छांव के नीचे होते हैं। पुलिस और खुफियादारी चाहे जितनी मर्जी आजादी दिखा दे, लेकिन वो लोग भी इन्हीं के पांव की जंजीर में बंधे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जराइम इन्हीं के जेरे साया फलते फूलते हैं और यही ताकतवर लोग उसके जिम्मेदार होते हैं। अक्सर औकात पुलिस तो इस हद तक बेबस दिखाई देती है कि वो किसी ताकतवर बंदे का आदमी पकड़ भी लें तो एफआईआर दर्ज नहीं करते और कई बार फंदा बेगुनाहों के गले में डाल दिया जाता है। मैं टीवी देखते हुए यही सोच रहा था कि प्रयाल सिंह आ गया। उसके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि विकी सिंह के बारे में मालूम हो गया था। इस वक्त वो शेहा वाले बाजार में मौजूद है। वहां एक 2 मंजिला इमारत है। उसके एक कमरे में अपने चंद लोगों के साथ मौजूद है। कितना वक्त लगेगा वहां तक जाने के लिए? मैंने पूछा। यही कोई आधा घंटा। मुमकिन है कुछ ज्यादा लगे, क्योंकि वो अंदरूनी शहर है। प्रयाल सिंह ने जवाब दिया। तो फिर निकलो। मैंने उठते हुए कहा। फिर प्रयाल सिंह से पूछा, इंफॉर्मेशन वाला बंदा तो काबिल एतमाद है ना? 100%। वो वहीं बैठा है और उनकी निगरानी कर रहा है, उससे जवाब दिया। चलो। मैंने बाहर निकलते हुए कहा तो वो सब चल दिए। शेहा वाला बाजार पुराना था। तंग से रास्ते के अंदर जीप नहीं जा सकती थी। मैंने सूरत हाल का अंदाजा लगाकर जसपाल को वहीं रहने को कहा। स्वीटी उसके साथ रहने दी, जो हरप्रीत के साथ थी। मैं, प्रयाल और दिलजीत इस बाजार में निकल गए। चंद कदम चलने के बाद मैंने प्रयाल से कहा, यार, अपने बंदे से पूछ विक्की सिंह किस गाड़ी में यहां तक आया है और उसकी गाड़ी किस तरफ खड़ी है। जाहिर है यहां उसकी गाड़ी तो नहीं आ सकती। मैंने खुले हुए बाजार की सूरत हाल देखकर कहा। मेरे कहने पर उसने राब्ता किया और चंद मिनट बाद बताया, सफेद रंग की करोला है उसके पास और वो बाजार के उस सिरे पर खड़ी है। उसे मुखालिफ समत में इशारा किया। तो फिर जसपाल से कहो उधर आ जाए। क्या उसे रास्ता मालूम होगा? मैंने कहते हुए पूछा। भाई जी, स्वीटी जो है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाजार के दरमियान में दाएं हाथ पर
2 मंजिला पुरानी सी इमारत के नीचे दुकानें थी। इन्हीं के दरमियान से तंग सी सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थी। मैं कनखियों से जायजा ले रहा था कि दिलजीत ने मेरे बाजू को पकड़ते हुए हौले से कहा, हमने उसे मारना तो है नहीं, जिंदा पकड़ना है। मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना हम बाहर उसका इंतजार करें और वहीं उसे काबू कर लें। मेरे ख्याल में वो ज्यादा आसान होगा। तुम ठीक कहती हो। ये कहकर मैंने परियाल सिंह ने पूछा, तुमने उसे देखा हुआ है ना? जी, लेकिन तकरीबन 2 साल पहले। पहचान तो लूंगा, उसे तेजी से जवाब दिया। तो हम आगे बढ़ते चले गए। मैं नहीं जानता था कि परियाल का इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा कहाँ था। बाजार के दूसरे सिरे पर जब हम पहुंचे तो मैंने एक सफेद करोला खड़ी देखी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। चंद गाड़ियां खड़ी थी। हमें वहां खड़े तकरीबन 5 मिनट हुए थे कि जसपाल लोग भी आ गए। मैंने नई सूरत हाल के बारे में बताकर अगला प्लान बताया। हम वहां यूं फिर रहे थे जैसे तफरी के मूड में आए हों। स्वीटी, दिलजीत और हरप्रीत एक कपड़े वाली दुकान में घुस गईं। उनकी तमाम तर तवज्जो हमारी तरफ थी। हम तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजार चुके तो परियाल सिंह को विकी सिंह के निकलने की इत्तला मिली तो मेरे अंदर सनसनी फैल गई। चंद मिनट के बाद मैंने देखा एक नौजवान सिख जिसने सफेद पतलून और शर्ट के साथ काली पगड़ी पहन रखी थी, उसके साथ 2 गार्ड तेज कदमों से चलते हुए आ रहे थे। उस वक्त तक जसपाल, परियाल, स्वीटी और हरप्रीत जीप में बैठ चुके थे। मैं और दिलजीत आगे बढ़े। एक सिख नौजवान भागता हुआ आया और उसने सफेद करोला का दरवाजा खोल दिया। विकी सिंह पिछली नशिस्त पर बैठा। बस यही एक लम्हा मेरे काम का था। मैंने यके बाद दीगरे 2 फायर किए। साइलेंसर लगे पिस्टल से ठक ठक हुई और ड्राइवर के साथ एक गार्ड गिर गया। उस वक्त तक दिलजीत ने भी फायर कर दिया था। दूसरा गार्ड कार में बैठ ही नहीं सका। वो हमसे चंद कदम के फासले पर थे। दिलजीत ने भागकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। उस वक्त तक विकी सिंह बाहर निकलना चाह रहा था। मैंने पिस्टल उसकी पसली से लगाते हुए कहा, बस विकी, खामोशी से बैठे रहो। ये कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और पिस्टल का दस्ता उसकी कनपटी पर मारा। वो एकदम से साकित हो गया। मैंने दरवाजा लगाया तो दिलजीत ने कार बढ़ा दी। जीप निकल चुकी थी और हम उसके ताक़ुब में थे। तकरीबन 2 मिनट के इस एक्शन में किसी की समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या है, मगर अब तक शोर हो चुका होगा। भरे बाजार में 3 लाशें पड़ी थीं। हम इंतहाई तेज रफ्तारी से चलते हुए जा रहे थे। अंधेरा फैल जाने पर शहर की रोशनियां जगमगा उठी थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हम किधर जा रहे हैं। वो गलियों के दरमियान सुनसान सी सड़क थी जहां जीप रुक गई। चंद कदम के फासले पर एक पराडो खड़ी थी। परियाल तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, ये गाड़ी छोड़ दे और वो ले लें। चंद मिनट में विकी सिंह को जसपाल और परियाल ने उस पराडो में से निकाला। तब तक मैंने डैशबोर्ड पर मौजूद सब चीजें निकाल ली। फिर इधर उधर देखा, एक छोटा सा बैग पड़ा था, मैंने वो भी उठा लिया। मैंने पराडो में जाकर विकी सिंह का सेल फोन निकाला और उसे बंद करके परियाल को दे दिया कि कार में फेंक दे। परियाल और स्वीटी वापस चले गए जबकि हम तेजी से आगे बढ़ गए। अब ये जसपाल जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो जालिंधर और अमृतसर रोड पर एक गांव था जिसमें एक हवेली नुमा मकान खेतों में ही बना हुआ था। वहां हरप्रीत का राबता था। अच्छा खासा अंधेरा था जब हम पहुंचे। उस बड़े सारे घर के बाहर जिस बंदे ने हमारा इस्तकबाल किया वो लंबे कद का तनोमंद आदमी था। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कांधे पर नसवारी रंग की चादर और उसी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। हशी दाढ़ी वाला वो बंदा पहली निगाह में मुझे वो अच्छा लगा था। उसने हम सबको देखकर हाथ जोड़े और फतह बुलाई। सत श्री अकाल सबनू ते जे आया नू आओ।
वो बंदा सरदार जी। हरप्रीत ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए तुम लोग आओ, उसे संभाल लेते हैं, उसने कहा और अंदर की जानब चल दिया। हम सेहन में जा बैठे तो मैंने देखा 3-4 बंदे प्राडो के पास आए और उसे वहां से ले गए। मैं खामोश रहा। पुत्र, मैं सरदार जीवन सिंह नेहवार हूँ। जलंधर कॉलेज में उस्ताद था, पढ़ाता था वहां, और ये हरप्रीत मेरी शागिर्द है। अब रिटायर हो चुका हूँ। मुझे खुशी है कि हरप्रीत ने मेरी मदद चाही। उसने अपना तारुफ करवाकर हम सब की तरफ देखा तो हरप्रीत ने हमारा मुख्तसर तारुफ करा दिया। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ होने का मतलब है कि तुम लोग कोई बड़ा काम कर रहे हो गया या अभी बाकी है? मदन लाल सर जी, हरप्रीत ने गले पर उंगली फेर कर कहा तो वो चौंक गया, फिर खुशी से उठा और मुझे गले लगा लिया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी मैंने कहा, ये दिलजीत, उसने कहा, तो मैं तो उसके साथ शामिल था। बड़ी बात है पुत्र, बड़े बड़े सोने नौजवानों को उन्होंने रोगी करके रख दिया है। वो मदन लाल सिंह कौम में जहरीला हंजर घोंप रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसका सद्देबाब हो जाए, मगर मेरा बस न चला। और मैं, वाह बेटी वाह, दिलजीत कमाल कर दिया तूने। इतने में एक उधेड़ उम्र खातून और एक नौजवान लड़की अंदर से ट्रे उठाए हुए आए। वो जीवन सिंह की बीवी और बेटी थी। वो खाना लगाने का कहकर चली गई और हम लस्सी पीने लगे। पुरतकल्लुफ खाने से फरागत के बाद हम डेरे पर चले गए। वो उनके घर से कुछ खेत छोड़कर था। 4 दीवारी के अंदर एक कितार में पुख्ता कमरे बने हुए थे। वहां चंद लड़के थे जिनके हाथ में असला दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। हम पांचों इस कमरे में चले गए। विकी सिंह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा, हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। दिलजीत आगे बढ़ी और उसकी पसली में ठोकर मारते हुए बोली, आखिर तुम एक चूहे की मानद मेरे कब्जे में आ ही गए हो ना विकी सिंह। इसकी आवाज पर वो चौंक गया। वो दिलजीत की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। उसे हैरत से पूछा, तुम वही फोन? हाँ, कहा था ना मैं तुम तक पहुंचूंगी। मदन लाल तो गया, उसकी केमिकल फैक्ट्री भी उड़ गई। अब तू बेरोजगार हो गया है, सोचा तुझे किसी काम पर लगा दो। ये कहते हुए उसने विकी सिंह की पगड़ी उतारी और उसके बाल पकड़ लिए। तू सिख कौम के माथे पर कलंक है वे बेगैरत। तू वो नासूर है जो सिख कौम के बदन में जहर घोल रहा है। मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, उसने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा। चल माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा, बोलेगा? दिलजीत ने उसके बालों को झटका दिया। पूछो, उसने होले से कहा। तो दिलजीत ने कहा, तेरा यहाँ का नेटवर्क तो तबाह हो गया है। भारत से बाहर कहाँ कहाँ है, बोल। मैं सिर्फ पाकिस्तान में नेटवर्क को देखता हूँ। कैसे? उसने पूछा। यहाँ से काफी माल जाता है और उधर से भी आता है। इसी तजारत में जो माल आता जाता है उसी में सब हो रहा है, उसने जवाब दिया। कौन है वहां पर? दिलजीत ने पूछा। मकसूद राजा। मेरी तरफ से उससे डील है। उसने कहा ही था कि जीवन सिंह ने गरजदार आवाज में कहा, बकवास करता है, गलत बात कर रहा है, इसे लुटका उल्टा बगैरत गलत ट्रैक पर डाल रहा है। उस पर विकी सिंह ने चौंक कर जीवन सिंह की तरफ देखा, फिर जैसे पहचानने की कोशिश करने लगा। देखो विकी, तुम वादे के मुताबिक गलत बयानी कर चुके हो, अब तुम्हारे लिए माफी नहीं है। दिलजीत ने कहा तो वो तेजी से बोला, मैंने अगर सच भी कह दिया
تو کون سا تم مجھے چھوڑنے والے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم لوگ مجھے مار دو گے، پھر کیوں سب کچھ بتاؤں؟ مار دو مجھے۔ میں نے کہا تو میرا ایک بار دماغ پھر گیا، پھر میں نے خود پر قابو رکھا اور بڑے تحمل سے کہا، آپ سب دوسرے کمرے میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں بکتا۔ اسے شاید یہ نہیں معلوم کہ تشدد کہتے کسے ہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوا تو میں نے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے دل میں حسرت نہ رہے وکی کہ تمہیں بے بس کر کے مارا گیا؟ اگر تم مجھے بے بس کر دو تو یہ ضمانت ہے کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے، ورنہ پھر مجھے تشدد کرنے کا پورا حق ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے باہیں پھیلا دی اور اسے وار کرنے کی دعوت دی۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں، میں وار نہیں کروں گا، مجھے نہیں لڑنا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔